Assalamu alaikum. Today we will start exercise 1A of book D3 and question number 3 we have to start. In previous question we did factorization, like we take something common and after that we have done the question, and in this question mostly we will use the formula, and the third formula all of you must be remember that a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. Whatever wherever we can use the formula we will use the formula, and then with the help of this formula we can simplify our question. So let's start our question number part A. With part A it is 2a plus b. Remember that जहाँ पे आपके पास स्क्वेयर्स होंगे ओनली देयर यू कैन अप्लाई द फार्मूला. फॉर एग्जांपल ओवर हेयर इट इज़ 4a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई कैन राइट इट एज in numerator obviously I cannot do anything, I cannot apply the formula because for the formula I need that this should be in this form. So this 4a square I can write it as 2a square and this I can write it as b square. Now this complete is your a and this complete is your b. Now a square and b square, that means you have to write first in a plus b and a minus b. So one time in plus and one time in minus. So 2a plus b will remain as it is, and in the denominator it will become 2a because a is now 2a plus b one time in plus and 2a minus b. Now we can see that I can cut that complete bracket. This is b. Okay, now this I can cut this and this. So the remaining in the numerator is left, that is 1 divided by, in the denominator what is left, it's 2a minus b. This is left in the denominator. Moving towards the next question, that is part B, and in this part you can see that हमारे पास जो न्यूमिनेटर में है उसमें आपने क्या करना है, आपने फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यू कैन अप्लाई द AC मेथड. ठीक है, देन बाय यूजिंग दैट मेथड यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. सो let's write the question. Okay, this is the question: c square plus 2cd minus 15d square. When I will multiply this c, and this is basically AC method or splitting method, in which you have to split the middle term such that after multiply you will get an answer 15 and after subtraction you will get an answer 2. So I know that the factors, आपके पास factors कौन से बन रहे हैं हमारे पास, I know that 5 and 3 are the factors with the help of which I can multiply. If I will multiply 5 and 3 I'll get 15, and if I will subtract so I'll get 2. c square plus 5cd. remember that आपको बड़े नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर चाहिए यहाँ पे, तो आपके पास बड़े नंबर के साथ आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव साइन आना चाहिए. माइनस 3cd माइनस 15d स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं और c कॉमन ले सकते हैं. सो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा c प्लस 5d. अब न्यूमिनेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा जी, न्यूमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या, इन दोनों में से क्या, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन ले सकते हैं. आपके पास बचेगा c प्लस 5 एंड थर्ड में सेकंड में से आई कैन टेक कॉमन 3, सो 3d. सो फ्रॉम हेयर इट इज़ c प्लस 5. अच्छा, यहाँ पे भी d आएगा और यहाँ पे भी d आएगा. ठीक है, एंड डिवीज़न में मेरे पास है 4c प्लस 5d. अच्छा, अब आपने क्या करना है, बिकॉज दिस इज़ योर AC मेथड, ऑल ऑफ़ यू नो दैट. सो हम ब्रैकेट्स को एक दफ़ा में लिखते हैं. c प्लस 5d जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, और जो हमारे पास दूसरे नंबर्स हैं दैट यू विल राइट इन द सेकंड ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाय, आपके पास आ जाएगा 4c एंड c प्लस 5d. c प्लस 5d एंड c प्लस 5d विल कैंसिल ईच अदर. और इसने पूरा काट दिया, आई डोंट वांट टू कट ऑल दैट. सो अच्छा जी, ये सिर्फ इसको कट करेगा. अच्छा, जो रिमेनिंग मेरे पास आंसर रह जाएगा वो आपके पास क्या रह जाएगा, c माइनस 3d डिवाइडेड बाय
4c। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया पार्ट बी का। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी। ओके जी, पार्ट सी इज़ 3a-6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस a-6। अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई AC मेथड इन द डिनोमिनेटर सच दैट after subtraction I will get after addition or subtraction I will get this 1, and after multiplication I will get 6. So from the numerator I can take 3 common, so answer is a-2, and from denominator I can take common. I have to make the factors. I know that a square plus 3a minus 2a minus 6, because 3 minus 2 is 1 and 3 multiplied with 2 is 6. Okay, numerator will remain as it is, 3a minus 2 will remain as it is, and denominator में आपने a कॉमन कर लेना है, सो आपके पास बचेगा a plus 3, and यहाँ से आप minus 2 कॉमन कर लेंगे, so the remaining is a plus 3. Okay, from here again if I will simplify, so it will be 3a minus 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से आपके पास आ जाएगा a plus 3 and a minus 2. a minus 2 and a minus 2 will cancel each other, and जो हमारे पास remaining terms रह जाएंगी that is 3 divided by a plus 3. This is my answer. Moving towards part D. ओके जी, पार्ट डी इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई द स्प्लिटिंग मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, मतलब आपको ऐड करने से 6 मिले और मल्टीप्लाई करने से 7 मिले, सो 7 ही को हम करते हैं, बिकॉज 7 1 ज़र 7, और 7 को जब 1 से माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे, सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो इट विल बिकम 7x माइनस 1x, या जस्ट आप x भी लिख सकते हैं, माइनस 7 डिवाइडेड बाय इधर से आई कैन टेक कॉमन x माइनस 1 विल रिमेन। ओके, फ्रॉम द न्यूमिनेटर आई कैन टेक x कॉमन, फ्रॉम हेयर x प्लस 7, एंड फ्रॉम हेयर आई कैन टेक माइनस 1 कॉमन, सो फ्रॉम हेयर इट विल बी x माइनस x प्लस 7। रिमेंबर दैट आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, नॉट इवन द डिफरेंस ऑफ द साइन, अदरवाइज़ आपने कहीं पे मिस्टेक की, यू हैव टू काउंटर चेक इट। x माइनस 1। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे, सो हमारे पास क्या बचेगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 7, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x इंटू x माइनस 1। नाउ आई कैन कट दिस x माइनस 1 एंड x माइनस 1। अहो, इसने मेरी बात नहीं समझी। आई कैन कट दिस ओनली x माइनस 1। अच्छा जी, कटिंग करने के बाद x माइनस 1 एंड x माइनस 1 कटिंग हो जाएगी, सो x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x जो है वो हमारे पास बच जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट ई, एंड लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। पार्ट ई इज़, अच्छा जी, पार्ट ई में आपके पास है k स्क्वेयर माइनस 9 डिवाइडेड बाय आपके पास है k स्क्वेयर प्लस 7k, एंड दिस इज़ 7k एंड प्लस 12। अच्छा जी, न्यूमिनेटर में तो हमारे पास थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा जनाब, न्यूमिनेटर में कैसे अप्लाई होगा, k स्क्वायर हम लिख देते हैं, k स्क्वायर, और 9 को आई कैन राइट इट एज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। सो हम क्या करेंगे, इसको k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 3k प्लस 12, ठीक हो गया। न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा इट्स k माइनस 3 एंड k प्लस 3, one time in plus and one time in minus, while in the denominator I can take k common from here, so it will become k minus 4, or from here I can take minus 3 common, so from here I can
have k plus 4. Okay, so further simplification, it's k minus 3 and k plus 3 divided by it's k minus 3 and k plus 4. So this minus 3 and minus 3 will cancel each other. So the remaining answer is k plus 3 divided by k plus 4. K plus 3 divided by k plus 4 is my remaining answer. Moving towards the last part of this question, and let me write down the question. Okay, this is the question. Km plus 8k divided by m square plus 4m minus 32. Numerator, it's simple. I can take k common from the numerator, so the remaining is m plus 8, and while in the denominator I can take common. I cannot take anything common. What I have to do, I have to apply the AC method. 32. After multiplication I get 32, after subtraction I get 4, so it's simple 8 and 4. 8 and 4 को जब आप करेंगे सो आपके पास आ जाएगा 8 4s are 32 एंड 8 माइनस 4 से आपके पास आ जाता है 4. ओके जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. k इंटू एम प्लस 8 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे हम m कॉमन ले लें अगर, ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाना. अच्छा जी, यहाँ से हम m कॉमन अगर ले लेते हैं सो आपके पास रह जाएगा m प्लस 8. रिमेंबर दैट इस स्टेप पे आप कटिंग नहीं कर सकते. माइनस 4, कुछ स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहीं पे ये जो 8 आ गया इसको काट दिया और फिर वो एक ब्रैकेट वाला रह जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है. यहाँ पे आपने कटिंग नहीं करनी है. आपने कटिंग जो है वो इसके बाद वाले स्टेप में करनी है जहाँ पे आप ब्रैकेट को भी कॉमन ले लेते हैं. ओके जी, फ्रॉम हेयर इट इज़ m plus 8 and in the denominator it is m plus 8, and in the second bracket what is left, it is left with m minus 4. Now it's cutting time. This and this will cancel, so the remaining my answer is k divided by m minus 4 is my answer for this part. So that is it for today. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.